Thank you. Kindly mute yourself. I will ask one by one to everyone. But this class is really important for your future perspective. As far as this class, I think the credit has not defined, but this is really important for your future perspective. Uh, the subject name is Introduction to Electronics Engineering, right? So this is all about why you all peoples has already taken the admissions in electronics department, and what are your future scenario you are looking for. That is really important. So in today's class, or in future class, I will do some, always the hands-on practice, and for the practical scenario, we will discuss about the practical scenario, not theoretical. uh, uh, Before we start, what we did, and our students has done some fantastic job in last year. Now, those are already now promoted as a second year. They have done good project also, and they have also filed the patents already in second year students and third year students. As far as the electronics students, you have a better opportunity as compared to other department. I am not compared with other branch, but what are the perspective here? As an electronics engineer, you can able to apply or sit in placement of computer science engineering placement. You can also apply for the electrical job, and I already told in many times, due to the current scenario, the many companies has migrated from China to different countries, and when you able to judge in nearby all the vehicles, all the devices, चाहे आपकी मम्मी यूज कर रही हो, पापा यूज कर रहे हो, or either you are using, all are electronic device. But unfortunately, as far as India concerned, हम उसको grab नहीं कर पाए, opportunity को grab नहीं कर पाए. That's why China, Korea and Taiwan was leading in that area. And आपको पता नहीं होगा, 40% नहीं है, 40% जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं पर डे बोल रहा हूं मैं. आप अपने घर के किसी भी सामान को आप देखोगे, चाहे मदर का डिमांड हो या फादर का डिमांड हो या आपका डिमांड हो, 40% जो एक्सपेंडिचर है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे है. चाहे घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज है, यदि आप हैं तो मोबाइल है, या अलग अलग कैमरे, कभी कैमरा लगाना है, कभी मम्मी के लिए मिक्सिंग लेनी है, कभी कुछ मतलब माइक्रो ओवन लेना है, कुछ भी, चाहे व्हीकल्स ले लो, आज स्कूटी ले लो, साइकिल ले लो, ऑल आर इलेक्ट्रॉनिक, राइट. सो हम उस अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पाते कि क्या ऑप्शंस है. सो ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, बट यस, एक चीज जो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में आपको एक प्लेटफॉर्म देगा, दैट इज योर स्किल्स. सो स्किल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एक चीज और बता देता हूँ, व्हाई यू आर नॉट differ as compared to computer science, because we are teaching C, we are teaching you C++, Python, data structures, IoT. I will take IoT class in when you will in 6th semester. Since as a senior faculty of the department, this class is only for your booster, and how you can able to do your best, so that platform is very important. क्या होता है कि कभी पता नहीं, आप लोग तो बहुत मे बी बहुत अच्छे फैमिली से होंगे, बट कभी पापा से पूछना, कभी यदि बाई चांस यदि आपको कोई ट्रेन पकड़नी हो ना, तो ट्रेन पकड़ने में चाहे राजधानी में जाना हो या कोई छोटी सी ट्रेन में जानी हो आपको, बट सबसे पहले प्लेटफॉर्म पे आना बहुत जरूरी होता है. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट, कि पहले प्लेटफॉर्म पे आना है, उसके बाद गाड़ी मान लो छूट रही है या आपका रिजर्वेशन नहीं हो पाया, तो आप सबसे पहले जगह बनाने की कोशिश करो, खड़े रहो. थोड़ी देर खड़े होते 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 आपको कोई सीट दे देगा, बैठ जाओगे, धीरे 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 आपका पूरा सिस्टम आपका हो जाता है. अरे मतलब पता ही नहीं चलता कि एक जगह पे मेरा रिजर्वेशन नहीं था और आफ्टर 1 आवर्स मेरा पूरा अपना पूरा सीट मिल गया मुझे. तो सबसे पहले कभी भी किसी भी कंडीशन में, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी भी टफ टाइम आए ना तो घबराना नहीं है, सबसे पहले धीरे 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 उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचना है. Once you will reach the platform, then you are able to catch the train. अदरवाइज प्लेटफॉर्म पे ही नहीं पहुंचोगे, जम्मू स्टेशन पे ही नहीं पहुंचोगे, तो ट्रेन कहाँ मिलेगी? घर पे थोड़ी ट्रेन मिल जाएगी, नहीं मिल पाएगी. सो सबसे पहले आपका जो एजेंडा होना चाहिए कि बेसिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वंस यू बिल्ड योर बेसिक कॉन्सेप्ट,
then you can catch any type of competitions, right? So मैंने एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव बताया आपको, ये बाद में पता चलेगा आपको। एंड यदि किसी का रिलेटिव हो, कोई आप में से किसी का रिलेटिव यदि किसी आईटी कंपनी में हो, तो जस्ट आस्क हिम। कंप्यूटर साइंस से भी ज्यादा 70% आईटी इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, राइट? क्यों? बिकॉज दे हैव नॉलेज ऑफ बोथ। क्योंकि स्किल्स होती है, तो टफ है इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच, नो डाउट, एज टफर देन अदर ब्रांच, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स ज्यादा है। और मैथमेटिक्स जहां भी होगा वहां पे स्किल्स अपने आप डेवलप होता है। मैथमेटिक्स का एक अलग ही लॉजिक होता है, राइट? यदि एक बार स्किल्स अच्छे हैं तो आप अपने आप को कहीं भी फिट कर सकते हैं। और हम डरते भी हैं, कभी कभी सोचते हैं मैथमेटिक्स टफ है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये चीजें आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में हमेशा कंसाइड, आपका हमेशा हेल्प करता रहेगा। सो पहला कि कभी भी किसी ब्रांच से कंपेयर नहीं करने का। अभी ध्यान से देखना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्या हो सकता है, बट सेम चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ हुई थी। व्हेन 2000 से लेके 2018 तक, 2000 बोल रहा हूँ मैं, 2000 से लेके 2018 और 18 तक इलेक्ट्रॉनिक्स वाज द टॉप ब्रांच, फर्स्ट लेवल पे था। उसके बाद सेकेंड लेवल पे आया और कभी भी नीचे नहीं गया, सेकेंड लेवल से भी नीचे नहीं गया। तो 16 के बाद कंप्यूटर साइंस थोड़ा डोमिनेटिंग करने लगा, तो 16 के बाद कंपटीशन होने लगा। बट याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक्स कभी भी सेकेंड से नीचे नहीं गया, चाहे चॉइस का देखो। बट एक ध्यान से देखो अभी क्या नेचर है, क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स नीचे गया। क्योंकि उस समय भी जब इलेक्ट्रॉनिक्स बूम पे थी, तो जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस थे, जितने भी कॉलेजेस थे, इंजीनियरिंग कॉलेज थे, दे आर टेकिंग द एडमिशंस इस तरह से लेने लगे कि 25,000 50,000 इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर इन वन कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज। सेम कंडीशन हो रही है आज कंप्यूटर साइंस के साथ। मैं नाम नहीं बोलूंगा बिकॉज वी आर डूइंग द रिकॉर्ड, बट यू ऑल आर नो दैट कि इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट देयर इज नो लिमिट ऑफ द सीट्स, राइट? बहुत अच्छे अच्छे नाम है, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं। कोई चेन्नई में है, कोई आपका चंडीगढ़ में है, कोई आपका उड़ीसा में है, कोई दो एक और है चेन्नई में है, जो 25,000 एडमिशन तक ले रहे हैं। 25,000 इन कंप्यूटर साइंस, समझ लो ये 4 कॉलेज, हाँ नाम नहीं लेना है बेटा किसी का। सो 25,000 स्टूडेंट्स इन वन कॉलेज जालंधर में है। सो आप समझ सकते हो 4 कॉलेज मिलकर 2 लाख इंजीनियर कहां से अकोमोडेट होगा? कभी अंडरस्टूड करो इस बात को। बट यस, आप किसी ब्रांच में, ये नहीं बोलूंगा कि आप मैकेनिकल में हैं या सिविल में हैं आपको जॉब नहीं लगेगी। आप सुंदर पिचाई ले लो ना, सुंदर पिचाई किस मटेरियल साइंस का बंदा है, बट इज अ सीईओ ऑफ गूगल। सो सबसे डिपेंड करता है कि आप किस ब्रांच में हैं, कोई मीनिंगफुल नहीं होता। मीनिंग है कि आप किस में अच्छा मेहनत करते हैं। यस, थोड़ा सा मीनिंगफुल है, सब सीईओ नहीं बन जाएगा, तो अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज में क्या है कि गेट जितने भी गवर्नमेंट, यदि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना है तो कंप्यूटर साइंस का अभी थोड़े से आना स्टार्ट हुआ है। बट गवर्नमेंट जॉब यदि देखोगे तो यदि आपको आईएएस का एग्जाम देना है, ईएस का एग्जाम देना है, थ्रू गेट लॉट ऑफ कंपनीज अवेलेबल। मैकेनिकल में, वहां पे मैकेनिकल सिविल में भी है, कंप्यूटर साइंस से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट जॉब में थ्रू गेट का जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में, सिविल में है। जो इसमें मैं ये बोल सकता हूँ, देयर इज नो कंपैरिजन। यदि आपको कल आईएएस देना है तो आप नहीं दे सकते, दूसरे किसी और कंप्यूटर साइंस से नहीं दे पाएंगे, बट यू कैन गिव थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। यदि आपको और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पहले से बना हुआ आएगा, कंप्यूटर साइंस के लिए आएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं आएगा। बट वहां पे जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी अच्छे रैंकर्स हैं, तो रैंकर बस ठीक हो गया, वो हो गया एक लेवल का अपना, एक तरह से ट्रेनिंग है वो। मैं आजकल उसको ट्रेनिंग मॉडल बोलता हूँ। ट्रेनिंग मॉडल में मतलब यदि आप एलएन में पढ़ते हैं या विद्या मंदिर दिल्ली वाले सेंटर में पढ़ते हैं, तो दैट इज अ ट्रेनिंग मॉडल। आपको ट्रेन इस तरह से किया गया है कि आपको हर क्वेश्चन का ट्रिक से आपको सॉल्व कर लेंगे, आपका रैंक अच्छा आ जाएगा। दैट इज द ट्रेनिंग मॉडल। और एक होता है हार्ड वर्किंग। आप हमेशा हार्ड वर्किंग करते हैं, अपने आप को, स्किल्स को अपडेट करते हैं, तो यू कैन बहुत आगे जा सकते हैं। तो आज मैं सबसे पहले हाईलाइट करूंगा कि आपका जो सेकेंड अपॉर्चुनिटीज है, नेक्स्ट क्लास से हम पूरा आपको एक हार्डवेयर प्रोजेक्ट भी बनवाएंगे आप लोग से, और आपको दिखाऊंगा अभी मैं कि मैं कोविड के टाइम पे हमारे बच्चे ने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था, दैट वाज रियली ऑलरेडी पेटेंटेड एंड ऑलरेडी इन द मार्केट। हमने उसको क्लेम नहीं किया बिकॉज दैट इज अवेलेबल फॉर ऑल, बट हमने सबसे पहले बनाया था इन जनवरी 2020, सॉरी मार्च 2020 में। उसके बाद ड्यू टू रिसोर्सेज और लोकेशंस के कारण हम उसको प्रोडक्शन में नहीं दे पाए, बट वी हैव
file the patent and given to open for the all इंडियन सिनारियो में कि कोई भी उसको यूज कर सकता है, आप बना सकते हैं, डिवाइस बना सकते हैं। एंड तो कभी आपको माइंड में आता है कि मैं अपना मोबाइल चार्ज करता हूँ, तो मोबाइल चार्जर नो डाउट चाइना का है तो बहुत इजी सस्ते में मिल जाएगा, बट कभी आपने खुद सोचा कि मुझे खुद बनाना चाहिए एक मोबाइल चार्जर, और उस मोबाइल चार्जर का यूज मैं मम्मी को दूं या पापा को दूं, देखो पापा मैंने एक खुद से एक ये बनाया है और आप इसका यूज कर सकते हो। तो वो सब मैं बताऊंगा कि आप कैसे बना सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। ये तो छोटी बात बताऊं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं आप, अभी दिखाऊंगा मैं कि आप रिस्ट बैंड में जब हम लगाते हैं कि हमारा क्या हेल्थ मीटर क्या है, कैसे मॉनिटर करता है, तो वो भी मैं आज वीडियो दिखाऊंगा आपको, जिससे आपको थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं यस एज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का कितना यूज है। आप स्कूटी से, साइकिल से ले लो, कोई भी सामान देखो ना, आप अपने घर के आसपास अभी देखो, सिस्टम में बैठे हो, मोबाइल अभी जो यूज कर रहे हो सब इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक के बिना कुछ है ही नहीं सिस्टम। चाहे आप दिवाली में कुछ जलाते हो, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मतलब 99% इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया है। मैं हमेशा ये बात बोला हूँ कि हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, बट गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमें फैब्रिकेशन लैब बनाना पड़ेगा। फैब्रिकेशन लैब हमारे पास नहीं है उस क्वालिटी का, जिसके कारण हम दूसरे पे डिपेंडेंट है। कोरिया से है, चाइना है, कोरिया है। मैं आई वेंट मैनी कंट्रीज, 11 टू 13 कंट्रीज मैं जा चुका हूँ। मैं कोरिया के लैब में, सैमसंग लैब में देखा हूँ कि कैसा चल रहा है। मैं चाइना गया था डालियान में, वहां पे देखा कि वहाँ का फैब्रिकेशन लैब क्या है। मैं ताइवान गया हूँ, आई नो दैट कि मतलब एक्चुअल सिनारियो क्या है। मेरी वॉइस तो बहुत तेज है, क्यों नहीं सुनाई दे रही है? मेरी आवाज आ रही है ना आपको पार्थ? यस सर। हाँ, मैं तो बहुत तेज बोलता हूँ। यदि किसी का वॉइस नहीं सुनाई दे रहा है तो मुझे बता देना वैसे, बट ऐसे ही मैं बहुत लाउड बोलता हूँ। तो फर्स्ट इज ओके। सेकेंड, आपको सबको अपने आप में क्या करना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट पढ़ना है कम से कम 3 घंटे। और ये नहीं कि टाइम टेबल बना लिया, अभी फर्स्ट में आगे टाइम टेबल बना है, अच्छी बात है, जो बना के पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 90% केस में देखा हूँ कि टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। अपने आप तो क्या है ना, आप यू आर द बेस्ट पर्सन टू जज योर सेल्फ कि मैं क्या सही में कर रहा हूँ का क्या। तो याद रखिए, जो क्लास हो उसके नोट्स बनाइए, चाहे IITs NITs और SMDU। आप देखोगे, देखो सबसे मैं आज अभी किसी पेरेंट से बात हो रही थी कि मेरा 95,000 बच्चे का रैंक है, क्या मिल पाएगा मुझे कंप्यूटर साइंस? मैं बोला सर जोसा से नहीं मिल पाएगा। अच्छा बताओ कि इंडिया में जोसा जोसा जानते हो आप लोग? अरब यस सर। जोसा जोसा काउंसलिंग में आप अभी थोड़ा टाइम मिलेगा तो आप जाके आज देखना। ओनली 94 कॉलेजेस हैं इंडिया में, सॉरी ओनली 94 कॉलेजेस इंक्लूडेड हैं उस लिस्ट में, जोसा के लिस्ट में। बट इंडिया में तो 50,000 कॉलेजेस हैं, राइट? वाई 94 कॉलेज? बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अरब म्यूट कर लो बेटो। सो 94 कॉलेजेस ही क्यों हैं? ऐसा नहीं है कि SMU के पास पैसे हैं इसलिए हैं उसमें। यहाँ पे पैसों की कमी नहीं है, जैसे कुछ बच्चों ने नाम लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता इस इंस्टीट्यूट का, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो भी आ जा सकता था, नहीं है। बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, ऑन द बेसिस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और आप में से बहुत आए हो गए यूनिवर्सिटी में, क्योंकि अभी IIT के JEE मेन वाले बच्चे आ रहे हैं। अभी फर्स्ट लिस्ट गया है, सेकेंड लिस्ट आज निकलेगा, और जोसा काउंसलिंग के बाद 1 नवंबर के बाद आपके सारे ऑल इंडिया 23 स्टेट के बच्चे आपके क्लास में रहेंगे, 23 स्टेट। सो यू नो दैट कि कितना मतलब एक पूरा मिनी इंडिया की तरह आपको अपना आपका क्लास दिखेगा। और दैट इज रियली गुड फॉर ऑल कि हम उनसे शेयर करें, आप उनसे शेयर करें, एंड यू कैन लर्न समथिंग। तो एक बहुत आप ध्यान से रखना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अच्छे नहीं हो या वो अच्छे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाह रहा हूँ, बट यू आर रियली लकीस्ट कि आपका यदि देखो जोसा के थ्रू आओगे ना तो 1.5 लाख रैंक के ऊपर, 2 लाख रैंक के ऊपर जाएगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं जाएगा। बट कंप्यूटर साइंस में जिनको यहाँ पे मिला है अभी 1 लाख तक, वहां पे 50,000 तक खत्म हो जाता है। सो करने का मतलब ये है कि आप टॉप 178 रैंक कॉलेज में हो। आपने कितने ने विजिट किया है इंस्टीट्यूट आई डोंट नो, बट बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ही मतलब पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। यू कैन अभी आपका एक सीनियर ने 8th रैंक लाया है KS में 2 दिन पहले।
की बात है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो आईएएस क्वालिफाई किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। बहुत सारे बच्चे हैं, अजय कुचर है जो आईआईसी बेंगलोर में पढ़ रहा है। तो मतलब आप में से ही कोई गया है ना वहां पे। और मैं तो जानता हूँ कि कोई भी बच्चा बैठा नहीं है, याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा, कोई भी बच्चा, और लाइफ में हमेशा याद रखना। हाँ, सुंदर बनी, यस अभिषेक, यस राइट। यू कैन आस्क अबाउट मी। he has done project under me only. कहने का मतलब यह है कि आप भी, मैं तो ये डैम श्योर हूँ। और देखो, कुछ बच्चे शरारत करते हैं, ये करते हैं, सबका एक टाइम होता है। बट याद रखना, एक मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, चाहे आप यहाँ पे हो या कैंसिल करवाते हो कहीं और जाते हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, लाइफ में लाइफ में इस कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। फैमिली के अलावा, दोस्त बनाना अच्छी बात है, ये नहीं बोलूंगा दोस्त नहीं बनाओ, अच्छी बात है। फैमिली के अलावा कोई काम नहीं आता, याद रखना। अब आज एडमिशन के, आज मैं पहला दिन क्लास ले रहा हूँ। और यदि मैं यहाँ रहा, बिकॉज मैं एनआईटी सूरत में भी पढ़ाया हूँ। मेरा ट्रिपल आईटी रायपुर में भी हुआ था, ट्रिपल आईटी जबलपुर में हुआ था, इन ऑन द रिकॉर्ड आई एम टेलिंग यू। एंड जब भी आपको टाइम मिले, जस्ट विजिट माई प्रोफाइल। आई एम द मोस्ट पॉपुलर ऑथर इन द इंटायर वर्ल्ड, बोल रहा हूँ, नॉट कंट्री, राइट? So and I have more than 10 patents filed, and already 7 are published. तो आप मेरा प्रोफाइल, कभी भी आपको टाइम, छोड़िए प्रोफाइल का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अच्छा करेंगे, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। सेकेंड वन कि करने का मतलब ये है कि वो यदि क्वालिफाई 8 रैंक से कर सकता है तो आप फर्स्ट रैंक से भी कर सकते हैं। बट ये है कि आप कंसंट्रेशन रखें। और फिर हम तो अभी थोड़ा सा मैंने लेक्चर बहुत दे दिया, अभी मैं दिखाऊंगा कि एक बच्चे ने कितना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था, कि ऑटोमेटिक मशीन बनाया था, कि यदि आपको ये उसमें से स्प्रे निकलता था, ऑटोमेटिकली आप उसको रब करके अपना वो कर सकते हैं। सैनिटाइजर मशीन बनाए थे हमने ऑटोमेटिक, और ये अभी नहीं बनाया था, आप कभी भी टाइम मिले जस्ट गूगल में सर्च कर लीजिएगा। इन मार्च में बनाया था हमने, और सारे पेपर्स में आए थे, मीडिया में आया था, और आपका सेकेंड ईयर का बच्चा बनाया था। सो इट्स मतलब बहुत ही, और 1 मिनट का वीडियो है, तो यस अभिषेक, सो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो। फिर हम आगे आगे आपको एक एक चीज, आप सब कुछ बताना है, थोड़ा सा मुझे हाईलाइट करना है कि आपको कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे आगे जाएंगे, क्या आपके माइंड में है। एक एक बच्चे से मैं पूछना चाहूंगा कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। तो मैं सबसे पहले एक बार मैं एक वीडियो शेयर करता हूँ। ये 1 मिनट का वीडियो है, मैं ज्यादा लंबा नहीं किया हूँ, मैं सबको कट करके रखा हूँ क्योंकि थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट लगे। तो यदि आप लोग को स्क्रीन दिख रहा होगा तो मुझे बताइएगा बेटू। यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है, तो ये वीडियो दिख रहा होगा। हमारे पास क्या था, कोविड के टाइम में हमारे पास कुछ भी रिसोर्सेज नहीं थे, सिर्फ लैब था हमारा, 5G लैब, IoT लैब। और हमारे पास एक ये सिर्फ, फिर मैंने अपने घर से एक लिया जग, और जग के में क्योंकि उस समय हम बाहर निकल नहीं सकते थे, तो हमें ऐसा नहीं था कि हमें कोई लाइफ बॉय का या सेवलॉन का कुछ मिल जाता डब्बा, उसी में हम करके प्रैक्टिकल कर सकते थे। तो हमारे पास सिचुएशन ऐसा था कि पूरा पूरा लॉकडाउन था, कहीं आप निकल नहीं सकते, आप लोगों को सब पता होगा एक्चुअली। तो हमारे पास जितने भी मटेरियल्स थे उसको गार्बेज का यूज करके सब कुछ, मतलब जितनी अवेलेबिलिटी थी उसके हिसाब से हमने ये मशीन बनाया था। तो सबसे पहले आप देखिए, और फिर मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। आपने देखा कि किस तरह से एक वेंडर मशीन में कैसे, किस तरह से कुछ नहीं किया था हमने। सिंपल प्रोसेस बहुत सारे हैं जो मैं एक एक करके आप भी बना पाएंगे ये सब चीजें। हमने सिर्फ, क्या होता है, एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लिया था। अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या करता है कि डिस्टेंस को मेजर करता है, राइट? और डिस्टेंस मेजर करने के बाद, जैसे ही आप, हमने डिस्टेंस फिक्स कर रखा था, यदि इतने डिस्टेंस तक आएगा, यदि विद इन 1 मीटर आएगा तो वो स्टे करेगा, कितना अमाउंट करेगा उसके लिए हमने एक पाइप ली थी। पहले पाइप का इंटेंसिटी ज्यादा आ रहा था, फिर हमने इसको मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोगों ने तो रेडियो कभी खुद से खोल के, टीवी खोल के तो कभी देखा नहीं है, आजकल का सिस्टम अलग हो गया। हमारे टाइम में बहुत अच्छा था कि हम सब कुछ को ओपन करके सब कुछ देखते थे कि क्या कैसे है, बट इट्स ओके। सो
आप ये स्मृति देखा आपने जो बच्चे ने बनाया था अभी, आपके जो सीनियर ने बनाया था वेंडर, ये मशीन, ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन, स्मृति रेना? यस सर, देखा मैंने बेटा? देखा था। हाँ, तो आपने न्यूज में भी देखा होगा, यदि आप उस समय, यदि आपने न्यूज में पढ़ा होगा तो पता नहीं उस समय आपने, आप तो एसोसिएट नहीं थे ऐसे वीडियो से, बट बहुत ही कम कॉस्ट का, अब समझ लो 250 रुपीज में एक पूरा सिस्टम बना दिया था हम लोगों ने, और दे हैव ऑलरेडी फाइल्ड द पेटेंट, और बाद में हमने ओपन कर दिया था कि दैट विल यूज बाय एनीवन, कोई भी यूज कर सके, क्योंकि कोविड के कारण आप एक कंट्रीब्यूशन कर लो। तो शिवम, शिवम, यस सर। तो देखा बेटू, वीडियो देखा आपने? यस सर। देखो बहुत छोटा सा है कंट्रीब्यूशन, लेकिन उस समय एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी यदि कंट्री के लिए इतना हेल्पफुल है कि अब आप देखोगे बहुत जगह जाओगे तो आपको ये मशीन दिखेगा आपको, है ना? कि Yes, मतलब sir. हाँ, तो ऑटोमेटिक, तो यही होता है कि इंजीनियर का पावर देखो, ये हम छोटा सा काम है लेकिन इतना ज्यादा इम्पैक्ट है कि पहले क्या था कि इतना डरे हुए थे उस समय बंदे की, कोई किसी को टच नहीं करना चाह रहा था। अब मान लो उसको प्रेस करके लेते हैं, तो फिर आपने प्रेस कर दिया तो गया वो इन्फेक्टेड हो गया, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने ये किया था। दूसरा, आपने म्यूट कर लो, मैं आगे चलता हूँ। पिया बैद, पिया बैद, अनम्यूट करो। बिटू अनम्यूट। आरुषि पंडिता, आरुषि पंडिता। हेलो सर। हाँ, बेटा आप आपने गूगल का रिस्ट बैंड जो हेल्थ केयर को मॉनिटर करता है, या एमआई का देखा है बैंड? यस सर, देखा है। देखा है? कभी सोचा है कि वो क्या हम भी बना सकते थे, हमारी इंडियन कंट्री भी बना सकती थी और बहुत अच्छा यूज कर सकते थे? यस कभी सोचा है सर। कि, कभी यही सोचा है कि क्यों यार कोरियन क्यों, चाइनीज क्यों, और एप्पल यूएसए क्यों, हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं? मतलब कभी कभी माइंड में आता है ये चीजें? हाँ सर। हाँ, तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो दिखाने वाला हूँ कि हाउ यू कैन एबल टू मतलब डिजाइन और मैन्युफैक्चर योर ओन wrist band so that you can able to trace your health levels. So मैं फिर से शेयर करता हूँ, फिर बताइएगा आप लोग। ओके सर। म्यूट कर लो। और ये सारे वीडियोज हमारे हैं, मेरा चैनल पे सारे हैं, राकेश झा, उस पे आप देख सकते हैं आप जब भी चाहें। सो हेयर, ये हमारा 5G लैब है। सबको दिख रहा है स्क्रीन? प्रिया, स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। यस ओके, सर। हाँ, तो आप देखना, मैं इसको अभी थोड़ा सा चलाऊंगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट है, मैं दिखाऊंगा आप जब कभी यहाँ विजिट करेंगे तो। नाउ ध्यान से देखना, जो पेशेंट है अभी इस कंडीशन में है कि बैठे हुए हैं, राइट? तो बताओ कि कोई भी पेशेंट है हॉस्पिटल में, वो तीन कंडीशन में हो सकता है। या तो वो पेशेंट क्या हो सकता है बेटू, या तो लेटा हो सकता है जो बहुत ही खराब कंडीशन हो, दूसरा बैठा व्हील चेयर में बैठ सकता है, और तीसरा कि जब वो बहुत अच्छा हो, जैसे कि आप हॉस्पिटल से मॉनिटरिंग करना है उसको, तो बहुत खराब कंडीशन है, ओके लाइंग ऑन द बेड कर लो। जब यदि थोड़ा सा हेल्थ ठीक है तो व्हील चेयर पे बैठेगा और चलेगा, कोई इसको चलाएगा तो मॉनिटर करना है। तीसरा, वो खड़ा हो जाएगा, है ना, खड़ा हो जाएगा, चलेगा चलेगा, तो पार्क में भी चलेगा, तो वहां पे उसको मॉनिटर करना है ना। तो मॉनिटर करना है तो हम कैसे कर पाएंगे, कि कोई एडमिट देना है। ओके, तो ये सब प्रॉब्लम है। सो सॉरी, सो हेयर फर्स्ट आप ध्यान से देखना, मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं आराम से देखूंगा। एक मिनट लाइन पर, एक मिनट लाइन पे रहना, ले आएगा। अब ये पेशेंट अभी लेटा हुआ है, समझाऊंगा, डोंट वरी। जब स्टैंडिंग थे तब क्या था,
और अब दूसरा देखते हैं, इसको देखिएगा और थोड़ा सा इंटरेस्ट लाइएगा कि हम कर सकते हैं। जब हमारी लैब कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी आपको? देखो उठा तो क्या होगा, ये समझा होगा मैं ग्राफ अभी। नहीं पूरा 100 तक जाने दीजिए। Okay, 3. Sir, walk and move your hand position also. Back. Now you can see here the spikes will be here when there is a movement in the walking conditions. Both hand sensor and foot sensors, both are in mobile conditions. Then spikes will appear. So first, smooth, case 1, case 2, fluctuation, somehow fluctuation but smooth, and third one is high fluctuation conditions. So to optimize the power, we are able to judge in case 1 the less power is required, case 2 higher as compared to the case 1, and case 3 a lot of fluctuation is there. So power requirement, energy efficiency algorithm is very high requirement. So our proposed work can optimize these fluctuations and overcome the requirement of power. And this case study, all these cases will be aligned with the energy efficient narrowband IoT. Thank you. Thank you. So आप लोगों ने देखा बेटू वीडियो? एनीवन एक कमेंट कर दो। अनन्या चलोत्रा, यस। सो क्या हो रहा है कि तीनों कंडीशंस में ऐसे ही, यस ठीक है। अभी अब समझते हैं हम। तो क्या होता है कि कोई भी पेशेंट है या तो लाइंग स्टेट पे होगा या बैठेगा, स्टैंडिंग बैठेगा, सिटिंग करेगा या वॉक करेगा। तो तीनों कंडीशन में आपने देखा होगा कि पहले में जब स्टैंडिंग था तो स्मूथ चल रहा था, सॉरी जब लेटा हुआ था, जैसे वो स्टैंडिंग हुआ तो फ्लक्चुएट बहुत तेजी के साथ हुआ बट स्मूथ था। बाद में जब दोनों हैंड्स और पाँव दोनों मतलब दोनों चल रहे थे तो फ्लक्चुएशन हो रहा था। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट थ्रेशोल्ड वी हैव काउंटेड द नंबर्स। आपको दिखता होगा इतना चला मैंने, 2 किलोमीटर चला। तो ऐसे ही मुझे माइंड में आया कि इफ दे पीपल डिड तो हम क्यों नहीं कर सकते? एज अ इंजीनियर हम भी कर सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि यस, थैंक यू अनन्या। सो हम और सब कुछ कर सकते हैं जो चाइनीज कर सकते हैं, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की बात है। और मेरे लैब में कभी आओगे तो मेरे लैब में सिर्फ यही प्रोजेक्ट सब मिलेंगे आपको, मतलब जितने भी AI के रिलेटेड, डीप लर्निंग के रिलेटेड, IoT के रिलेटेड, 5G के रिलेटेड। तो अभी आपको एक प्रोजेक्ट इधर दिख रहा होगा, मेरा थोड़ा सा इसको टूट गया है, फाइनल का प्रोजेक्ट नहीं बनाया था। तो आपने सबने देखा होगा अमेजन उसको किसी एक रोबोट का एक छोटा डिवाइस बनाया है। इसमें भी ऐसा ही है। इसमें हमने क्या किया हुआ है कि इसको डाटाबेस के साथ जोड़ा हुआ है और हमने बनाया था अपने असेंबली के गेट पे रखने के लिए इसको। तो उसमें क्या था कि आप इसको यहाँ का आप इसको पूछते कि वेयर इज अ ब्लॉक सी, वेयर इज द इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, वेयर इज द राकेश झा कैबिन, लाइक दैट। तो ये आपको पूरा स्पीक करके बताता और मैप भी दिखाता, राइट। तो बहुत ईजी है। जैसे कि आपको यदि लगता है कि कैसे हम करेंगे, कैसे कर सकते हैं, तो कुछ नहीं है। आजकल को होता है जीपीएस मैपिंग करते हैं। जीपीएस मैपिंग से डाटाबेस फैच होता है और वहां से सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे एक बार बताता हूँ, कभी आपने कौन कौन दिल्ली ट्रेवल गए हो, या एक नहीं ओला या क्या होता है, ओला है, दूसरा कौन सा है, उबर। हाँ ट्रेवल किए हो बेटा? अनिरुद्ध किया है आपने उबर या ओला?
यस सर। हाँ, तो आपने देखा होगा कि आपको जब वो ट्रेवल करते हैं ना तो उसमें जीपीएस, और भी मैं प्रोजेक्ट दिखाऊंगा जिससे थोड़ा आपका इंटरेस्ट और डेवलप हो, तो बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। मतलब कि उसमें हम देखते हैं क्या कि हम मोबाइल में देखते रहते हैं, तो दिखता हुआ कहीं कहीं ग्रीन दिखता है, कहीं कहीं पे आपको पिंक दिखता है, कहीं कहीं पे रेड दिखता है यस, अनिरुद्ध। यस सर, हाँ, ट्रैफिक के लिए। यस, ट्रैफिक के लिए। तो हम सोचते हैं वो ट्रैफिक कैसे पता चलता होगा। तो मेरे से एक बार पूछा गया था आईआईसी बेंगलोर में कि आप बता सकते हैं कि वो ट्रैफिक कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो at that time I thought that was all are monitoring from the satellite, right? जीपीएस के साथ सैटेलाइट लगा हुआ है, इसके साथ लगा हुआ है, इसलिए उस तरह से करते हैं। बट नाउ प्रीवियसली कहीं पे रेड है ना, वहां पे भी ट्रैफिक उतना नहीं होता था, यानी एक्यूरेसी बहुत कम थी। बट नाउ दीज डेज एक्यूरेसी इज वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। जहां पे वो बोलेगा कि हाँ रेड है, थोड़ा सा रेड है, तो रेड होगा ही होगा। पता है क्यों? ध्यान से सुनना। जितने भी आप स्टूडेंट्स हो, 42 स्टूडेंट्स अभी मुझे दिख रहे हो ऑनलाइन उसमें, तो एक ऑब्जर्व करना कि क्या होता है कि हर बंदे के पास एक मोबाइल के आजकल तो दो दो मोबाइल भी होते हैं। चलो एक मोबाइल लेते हैं, और मैक्सिमम 90% के पास, 10% को छोड़ दो, 90% के पास गूगल प्ले स्टोर होता है, और वहीं से आप एप्स डाउनलोड करते हैं। तो क्या किया है गूगल ने? यस, नंबर ऑफ द, यस, तो वो कैसे नंबर ऑफ द डिवाइसेस एट द सेम प्लेस कैसे करता है? थ्रू क्या किया है गूगल ने? मैचिंग किया हुआ है। गूगल प्ले स्टोर जितने जिन बंदों ने इंस्टॉल किया हुआ है, सबके एक दूसरे से इंटरफेरेंस करके वो जीपीएस, उसको बोलते हैं बेटा जीपीएस फेंसिंग। जीपीएस फेंसिंग क्या होता है? बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है कि मान लो मुझे क्लास अटेंडेंस लेना है, तो हमें लगेगा कि यार कोई भी गलत भी कर तरीके से ले सकता है, कोई फिंगरप्रिंट गलत ले लेगा, कोई और कुछ बोल देगा, कोई कार्ड लेके चला जाएगा। नहीं, जीपीएस फेंसिंग होती है उस क्लास के कोऑर्डिनेट में जितने बंदे हैं, सबका मोबाइल एक्टिवेट करवाएंगे, 1 सेकंड के लिए मोबाइल एक्टिवेट करो, अटेंडेंस लग जाएगा। या उसको बोलते हैं जीपीएस फेंसिंग। फेंसिंग मतलब वो पर्टिकुलर मार्क होगा उस एरिया का। सेम इन द केस ऑफ जो ट्रैफिक, किसी ने अच्छा बोला कि कितने नंबर ऑफ डिवाइस एक्टिव हैं, वो कैसे पता चलेगा? आपको एप्पल वाला तो देगा नहीं इन्फॉर्मेशन, आपको गूगल वाले से ही करना पड़ेगा। तो 90% जो हैं आजकल हम बंदे, वो 90% यूज करते हैं गूगल प्ले स्टोर, राइट? चाहे गेम के लिए करें या व्हाट्सएप के लिए करें। यदि मोबाइल है एप्पल का, एप्पल में भी एप्पल का अलग है अपना। और नोकिया को पता होगा आपको कि नोकिया इसलिए पूरा खत्म हो गया। नोकिया क्यों खत्म हो गया? क्योंकि उसने अपग्रेड नहीं किया, एंड्रॉइड में आने का ट्राई नहीं किया। हमेशा याद रखना, लाइफ में जब भी कुछ नया आए आपको अपग्रेड होना है। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, बट मैं सबसे ज्यादा काम करता हूँ कंप्यूटर्स में, क्योंकि यदि मैं अपग्रेड नहीं होऊंगा ना तो ब्रांच से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एआई में काम करता हूँ, मैं डीप लर्निंग में करता हूँ, मेरा मेन एरिया ही आईओटी है जो कंप्यूटर साइंस का है। तो मैं करने का मतलब ये है कि आपको अपग्रेड होना है। कौन सा ब्रांच है, देश नो, कोई मतलब नहीं है बेटू। ये सबका कभी भी मत ध्यान दीजिएगा कि उनका ये ब्रांच था, इनका ये ब्रांच था। तो और भी वीडियोस मैं ऑन द लाइन बताता जाऊंगा, दिखाता जाऊंगा। कुछ प्रोजेक्ट्स मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, बहुत सारे हैं। उसमें से एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट है। आप बिलीव नहीं करोगे, इन 2014 का वो बच्चा था, 2014, बिफोर 6 इयर्स, उसने एआई और डीप लर्निंग का उस समय बनाया था। हम जानते थे कि ये पता नहीं है कि एआई डीप लर्निंग है क्या, हमें भी मालूम नहीं था, बट हमने उसमें इंटेलिजेंसी लगाई थी। और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट जो है। सर वो भेज दीजिएगा थोड़ा मुझे, रोबोट। तो मैंने बनाया था क्या, उसे क्या बनवाया था कि उस समय शायद कुछ अटैक हुआ था, शायद टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो वहां पे फ्रांस का कोई रोबोट आया था, उससे मुझे थोड़ा सा दिमाग आया कि नहीं, हम भी कर सकते हैं। और आपको पता होगा उस बंदे ने, जिसने ये प्रोजेक्ट बनाया, तो मैं बताता हूँ, अभी प्रोजेक्ट दिखाऊंगा अभी आपको। आज उसका एक बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत बड़ा। और नो डाउट उसने अभी अपनी इतनी हार्डवेयर अच्छी कंपनी बनाई है कि वो कम से कम 100 से 150 बंदे को एम्प्लॉयमेंट भी दिया हुआ है। और अब तो वो मोर देन 100 करोड़ की कंपनी हो गई है। बहुत अच्छा स्टूडेंट था वो। बट वो सीजीपीए में बहुत अच्छा नहीं था, 7.5 7 ऐसा था। बट ही वॉज सो इंटरेस्टेड टुवर्ड्स ना कि मुझे हार्डवेयर प्रोजेक्ट, मतलब बहुत अच्छा आता था, हमसे भी अच्छा आता था। करते तो बचे ही हैं, हमें नहीं आता कुछ इतना। हम तो सिर्फ, हाँ, एक चीज आता है, भगवान ने दिया हुआ है थोड़ा सा दिमाग, तो हम उनको सिर्फ ये बोलते हैं कि हाँ, ये आपको डेवलप करना है, इस तरह से डेवलप कर सकते हैं, लाइक दैट।
राइट। बट अब ध्यान से देखना, तो उस समय हमें पता था कुछ अटैक हुआ था, और तो हमने बोला था कि यदि कोई बंदा जाएगा ऊपर और उसको मॉनिटर करने जाएगा तो उसको जो टेस्ट है शूट कर देंगे। तो उससे अच्छा ये है कि हम एक रोबोट बनाएं। तो रोबोट को तो बनाना तो इजी है, लेकिन रोबोट को स्टेयर्स पे चढ़ना, अपने यहाँ तो लिफ्ट है नहीं, तो लिफ्ट के हम रिमोट से कर देंगे, लिफ्ट के अंदर जाएगा, फिर रिमोट से खोल देंगे, रिमोट से निकल जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। तो स्टेयर्स पे कैसे चढ़ेगा, तो हमने उसके लिए स्टेयर्स के लिए भी चढ़ने के लिए, और चढ़ता है ये, ऐसा नहीं है, इस एक्चुअल प्रोजेक्ट। तो स्टेज पे चढ़ के फिर वो जाके जिधर आपके जाए, वाईफाई कैमरा लगा हुआ है। तो मैं आपको पहले प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ, यदि आपको दिखेगा अच्छे से, बहुत वो हो गया, ओल्ड भी हो गया है, बट मेरा मेरा अभी तक का सबसे जो अच्छा बच्चे ने काम किया मेरे लिए, तो ध्यान से दिखा रहा हूँ। ये एंटीना है, ये 2 एंटीना है जो ऊपर जाएगा, और आपका जो वाईफाई वाईफाई यहाँ पे है, वाईफाई इंस्टॉल है, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, यहाँ कैमरा लगा हुआ है। तो ये ऊपर आज से 6 साल समझ रहे हो, तो अभी अभी भी ये कोई बच्चे नहीं कर पाते हैं जितना अच्छा। उसके बाद ये देख लो, व्हील लगा हुआ है, और ये है स्टेयर्स पे चढ़ने के लिए, ये है स्टेयर्स पे चढ़ने के लिए, राइट। स्टेयर्स पे मतलब जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ेगा तो ये आगे पीछे करता जाएगा, आगे पीछे करती जाएगी, आगे पीछे करता जाएगा, तो ये स्टेयर्स पे चढ़ने लगेगा। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें वाईफाई इनेबल्ड है, वाईफाई इनेबल्ड कैमरा है। तो वाईफाई इनेबल कैमरा है, और कैमरा आप उसको एप्स के साथ, मोबाइल के एप्स के साथ इंटरफेस कर लेंगे, तो आपके मोबाइल पे सब कुछ दिखता जाएगा। वाईफाई इनेबल करने के बाद वो सारा दिखता जाएगा आपको कि ऊपर में कहाँ कोई छुपा हुआ है, क्या है, या आग लग गया तो किस एरिया में आग लगी हुई है, वो सब मॉनिटर करके आपको बताएगा आपके मोबाइल पे। और मोबाइल के अकॉर्डिंग ही रिमोट कहाँ गया इसका, हाँ रिमोट है इसका सेल्फली डिजाइन, तो उसको लेफ्ट राइट स्ट्रेट जो भी करना चाहें आप उसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये प्रोजेक्ट मेरे लिए इसलिए अच्छा था कि 6 साल पहले और आज तक मतलब इतने 6 साल होने के बावजूद, दैट इज मतलब कोई भी जल्दी इस प्रोजेक्ट, इस लेवल का प्रोजेक्ट कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है, चाहे आईआईटी में हो या कहीं और भी हो। मुझे मैं क्योंकि मैं पढ़ाया हूँ, एनआईटी पढ़ाया हूँ, तो मुझे मालूम है कि वहाँ पे भी इतने अच्छे लेवल्स के प्रोजेक्ट्स नहीं कर पाते हैं बच्चे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने अभी गूगल अमेजन का हेलो एलाइसा करते हैं आप, और वो बताता है क्या है, ये सब हमने कर चुके हैं, ऐसा नहीं है। बट यही है कि सिंस जम्मू एंड कश्मीर का लोकेशन होने के कारण हमारा उतना ना ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाता है काम का कि हाँ इतना अच्छा चल रहा है। बट नाउ इस काम के कारण ही आज हम 78 पे हैं, और भी ऊपर जाएंगे। आप जितना भी आप और अच्छा कर पाएंगे। तो कुछ बच्चे आपके, अब मैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का बताता हूँ। लास्ट ईयर का बहुत अच्छा जो बच्चा था, अपना अपूर्व से मिलवाऊंगा मैं आप लोग को। एंड ही वाज प्लेस्ड फोर कंपनी इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, और 4 कंपनी में। अब समझ लो एक ही टाइम उसको 4 जॉब लगी, विप्रो में लगी, इन्फोसिस में लगी, टीसीएस के R&D में लगा उसका, और भी था, मतलब इसमें लगा था, कैपजेमिनी में लगा था। तो कहने का मतलब ये है कि दे गॉट 4 जॉब्स एंड अलग अलग लेवल्स का। इन्फोसिस में भी उसके शायद 8.5 लाख का था, और टीसीएस में लगभग 7.5 का था। बट टीसीएस उन्होंने ज्वाइन किया, मैंने भी बोला कि नहीं टीसीएस R&D लैब में हुआ है तो मानो, तो गो फॉर दैट वन। वो भी आईएएस के लिए थोड़ा है, इंस्पायरिंग है। तो मैंने बोला अभी नहीं, अभी 2 साल पहले जॉब करो, द कंडीशन इज नॉट गुड। और आप R&D लैब में, मैंने क्योंकि मैं टीसीएस में था तो मुझे आई हैव द सम नॉलेज की। थोड़ा सा कॉर्पोरेट में काम करने के कारण क्या होता है कि थोड़ा सा आप ना एक्चुअल फैक्ट समझ पाते हैं, दुनिया का एक्चुअल फैक्ट समझ पाते हैं। शार्प 9 तो शार्प 9, शार्प 5 तो शार्प 5, नहीं आपका सारा, आपको कुछ बोलेगा नहीं कोई कंपनी। ऑल रिकॉर्ड्स हैज बीन सेव्ड इन डेटाबेस। जब आप आपकी अप्रेजल होगी तो वो सब आपका चार्ट दिखा देंगे कि ये आपका पूरा 1 साल का रहा है सिनारियो की, ये आपने काम किया है। ओके, नाउ इन द लास्ट सेक्शन, बिकॉज अभी बहुत कुछ करना है, मैं आपको एक प्रोजेक्ट बनवाऊंगा जो अपने मम्मी को और पापा को गिफ्ट दे सकते हैं, और सब हम करेंगे, बिलीव ऑन मी, बहुत इजीली तरीके से कर पाएंगे हम। पूरा मैं फैब्रिकेशन बताऊंगा कि पीसीबी फैब्रिकेशन करते कैसे हैं, कैसे बनाते हैं। नो डाउट मैं आपसे फर्स्ट ईयर में तो मिल रहा हूँ, बट मैं सीधे 3rd ईयर एंड फाइनल ईयर को ज्यादा मुझे मिलते हैं सब्जेक्ट।
बिकॉज उनका थर्ड ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल टाइम होता है, बच्चे थोड़े से कंफ्यूजन में होते हैं। कभी अब जैसे कोविड टाइम है, बच्चे को मुझे बहुत मेंटेन करना पड़ता है, हर दिन क्लास में 10 मिनट मुझे ही बताना पड़ता है कि आप एकदम चिंता मत करो, टाइम खराब है तो अच्छा भी आएगा, अपना पूरा तैयार करके रखो, मतलब पूरा हथियार तैयार करके रखो, जैसे मौका मिले आप। अभी इन्फोसिस का हुआ है, उनका प्लेसमेंट का एग्जाम हुआ है, हम लोग देखो अभी कोविड है तो हो सकता है मौका कम मिले, तो उसी में निकालना है, बट सब अच्छे हैं, बट बूस्टअप की बात होती है, आप कैसे उसको इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं। बच्चे सब अच्छे होते हैं, उनको सिर्फ एक गाइडलाइंस की अच्छी की जरूरत होती है। तो अभी इन्फोसिस का है, अभी फिर अभी नेक्स्ट वीक कॉग्निजेंट का है, फिर उनका टीसीएस का है, तो मतलब प्लेसमेंट तो है, लेकिन निकालना तो आपको पड़ेगा। नो डाउट कंपनी का जो कंडीशन है अच्छी नहीं चल रही है अभी, तो नो डाउट जहाँ पे वो 100 लेते थे वहां पे 60 लेंगे, बट आप अच्छे हैं तो आपको ले जाएगा। सो कहने का मतलब ये है कि आप बहुत सारे आप जानते भी होंगे अपने सीनियर्स को, जो अच्छे हैं, अच्छे मतलब जो मेहनत करते हैं, अच्छे अभी अच्छे से नहीं होता है, जो मेहनत करेंगे, कंटिन्यूस रहेंगे, दे शुड गॉट द जॉब। सो आप इस सब के लिए प्रॉब्लम मतलब कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इन लास्ट फेज ऑफ टुडेज क्लास मैं एक चीज बताना चाहूंगा, प्लीज मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके टाइम में देयर इज अ मे बी द कंपलसरी हो जाए, 100% कंपलसरी हो जाएगा गेट एग्जाम, राइट, टू एग्जिट द बीटेक, बिकॉज बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हैं, सबको मतलब कहीं ना कहीं रोक लगानी होगी गवर्नमेंट को, तो ऐसे तो रोक नहीं लगा सकते, तो वो करेंगे क्या कि गेट को एग्जिट एग्जाम बनाएंगे, जो चल रहा है, राइट। सो कोविड के कारण ही रुक गया अभी, अदरवाइज आपके टाइम में 100% मुझे लगता है कि वो आ जाएगा। शायद आपके पहले वाले जो सीनियर हैं, जो सेकंड ईयर में है, उनके लिए भी आएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि अपना एक फोकस कर लीजिए कि मुझे गेट मतलब गेट में बहुत पढ़ने से नहीं होता, अब कंसेप्चुअल होना चाहिए, राइट। तो कंसेप्चुअल के लिए मैं आप सबको बता देता हूँ कि एक बहुत अच्छी बुक है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, एक है मिलमन एंड हेल्किंस एंड दूसरा है बॉयस्टेड, राइट। सो बॉयस्टेड एंड मिलमन एंड हेल्किंस जरूर पढ़ें, और मिलमन एंड हेल्किंस बहुत नहीं पढ़ना है, उसमें सिर्फ मतलब ना इनिशियल के शायद 70 to 100 पेज पढ़ने हैं, लेकिन मिलमन एंड हेल्किंस का 100 पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अप टू इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉम्बिनेशन तक। तो प्लीज बुक का नाम जरूर लिख लें, मिलमन एंड हेल्किंस, एंड दूसरा बॉयस्टेड, राइट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट करके नाम आता है, उसमें बाइसिंग, डायोड, ये सब मैं पढ़ाऊँ, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, मेरा काम नहीं है इस सिलेबस में पढ़ाना, मेरा तो ये काम है कि आपको कुछ सिखा दूं, प्रैक्टिकली सुना दूं, बट मैं क्योंकि आई नो मैं गेट को गाइड करता हूँ, मैं भी बहुत बार क्वालिफाइड हूँ, तो मुझे मालूम है कि कैसे क्या करना होगा, तो मैं थोड़ा सा वो हाईलाइट करूंगा। तो प्लीज आप लोग अपने रूम में एक हाईलाइट जरूर कर लें, गेट का मार्क करके रख लें, गेट है, आईईएस है, अपना एक टारगेट जरूर बना लें। अच्छा, हाँ, यस। सो द नेम ऑफ द बुक इज, मैं आपको शेयर ही करता हूँ स्क्रीन। तो द बुक नेम इज इंटीग्रेटेड, लिख लो, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स बाय, मैं लिख देता हूँ यहाँ, राइट, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स नाम है बुक का, और जो राइटर हैं वो है मिलमन एंड हेल्किंस, हाँ वही है, मिलमन एंड हेल्किंस। सो प्लीज ये 100 पेज जरूर पढ़ें इसका, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो फाइनल ईयर तक पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि अभी पढ़ लें। तो मेरे टाइम में कहावत थी, आईआईटी वही क्वालिफाई करता है जो आरसी मुखर्जी पढ़ता है, पता नहीं आप एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में आरसी मुखर्जी हुआ करते थे, अभी बुक आती है कि नहीं आती मुझे नहीं मालूम, आप लोग ज्यादा बता पाएंगे, बट आरसी मुखर्जी, यस, आरसी मुखर्जी का जब तक आप फिजिकल कम्युनिकेशन में आप यदि फिजिकल केमिस्ट्री में हम जब तक सॉल्व नहीं करते तो उसको बोला जाता था, बिकॉज मैं भी बिरला मंदिर का प्रोडक्ट था, मैं दिल्ली से, तो मुझे मालूम है कि उस समय हम जब करते थे तो सब यही बोलते थे। दूसरा है बॉयस्टेड, दूसरी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ये तो जरूर लें, और कोई बुक ले ना लें जिंदगी में, लेकिन ये बुक जरूर लें, अभी फर्स्ट ईयर में ही है, आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है, इंट्रोडक्टरी सर्किट एनालिसिस बाय बॉयस्टेड, ये जरूर 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 लें आप बेटू, है ना। सो दिस इज द सेकेंड बुक यू शुड रेफर
for your GATE exam or for the basic concept of electronics and circuit. Okay, so hopefully you understood the what are the perspective of the introduction of electronics engineer, and how you can give the some solution to the country for your society, right? So एक एक करके मैं बिकॉज दूसरा जो फोकस करना है आपको, जो बहुत अच्छे हो या आपको लगता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है, तो याद रखना गेट में यदि टॉप 500 में है, right, if you are in the gate top 500, so you have the really good opportunity for the government job, right? Or if some have the other target, like you want to do your MS from outside abroad, or IIC Bangalore or IIT, so in that case you have also so good rank in GATE. Okay, so this is the second perspective. Third, you are eligible for IAS exam, engineering services exam. Yes, seats are less, but that was the gazetted officer grade उससे निकलते हैं directly. So that is second opportunity. Third, जो सबसे important है, जो सबके लिए एक common है, please आप सब प्रॉमिस करो कि आप सबको क्या करना है, पाइथन जरूर सीखना है, प्लीज. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर सिनेरियो. जैसा जब मैं कंपनी में था, टीसीएस में एंड कैपजेमिनी में, एट दैट टाइम द सैप वाज वेरी पॉपुलर, राइट? बेसिस और उसका हाई लेवल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट था. बट नाउ दिस डेज ऑल द कंपनीज आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड रिगार्डिंग पाइथन, राइट? एंड और एक जो कभी खत्म नहीं होगा वो सी है. यदि सी अच्छा आता है तो मतलब कोई अल्टरनेटिव ही नहीं. सी इज नो मास्टर ऑफ ऑल द लैंग्वेज. सो सी नो डाउट. अभी लो स्क्रिप्टिंग जो है हमारा पाइथन, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई, बिकॉज क्या इसका पर्सपेक्टिव है, कैसे हम कुछ कर सकते हैं, वो आई विल टेल यू, डोंट वरी. वो सबके लिए मैं बताऊंगा कि कैसे आप उसका एप्लीकेशंस कैसे यूज कर सकते हैं इन द लेटर फेज. बट एक दिन में सब कुछ नहीं, ध्यान देना है, वन बाय वन स्टेप्स हम चलेंगे. थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए मैंने आज थोड़ा सा वीडियो दिखाया, कुछ और भी दिखाऊंगा आपको, जिससे कि आपको लगे कि हाँ हम भी कुछ डेवलप कर सकते हैं. सो इन द लास्ट पेज आई वांट टू गेट द सम फीडबैक फ्रॉम योर साइड. इफ एनी want to ask any questions, please let me know. Otherwise I will tell separately to one by one to other one. So first I will ask Arab Gupta. Yes sir. अरब, समझ में आ रहा है बेटू कि क्या पर्सपेक्टिव है एज इंजीनियर, क्या करना है आपको? Yes sir. क्या 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 सोचा है आपने? कुछ टारगेट बनाया आपने, सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए? सर अभी तो गेट के लिए ही सोच रहा हूँ मैं पहले से ही, क्योंकि अभी मेंस का भी पेपर दिया तो उसमें रैंक मतलब इतना बेटर नहीं आया. मतलब अभी कोई 70,000 समथिंग रैंक था, तो अभी गेट का ही सोच रहा हूँ. वेरी गुड. तो ये जब जेईई मेन का एग्जाम दिया होगा तो ये तो पता चला होगा कि बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, आप बहुत हाई लेवल, चलो ठीक है हमें एक रैंक नहीं आना है, लेकिन यदि रैंक अच्छे रैंक में आना है तो हमें बेसिक्स बहुत क्लियर होना चाहिए, राइट? Yes sir. अभिषेक रंजाल. अभिषेक. यस सर. बेटा मैंने जो समझाया आपको समझ में आ रहा है? फ्यूचर पर्सपेक्टिव आपको क्या मतलब करना है और कैसे अच्छे सकते हैं, और क्या लगता है कि हम एज ए इंजीनियर कहीं चाइना और रशियन से कोरियन से कम है? नहीं है ना? एज ए इंजीनियर देखा जाए तो वी कैन डू. नो सर, बिल्कुल. यस सर, हम बहुत कुछ कर सकते हैं सर, बस अपने पे विश्वास होना चाहिए और बहुत कुछ कर सकते हैं. एंड तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि आप एक प्रोजेक्ट हम देंगे सबको, और वो अपने अपने घर पे कुछ चीजें मंगानी पड़ेगी, ऑनलाइन मंगा के आपको खुद से बनाने हैं, सो दैट यू कैन गिव द वन गिफ्ट टू योर मॉम एंड डैड, राइट? यस सर, वी कैन ट्राई टू. तो सबसे पहले पूछूंगा कि आपके घर में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या है, वो मैं बोलूंगा सबको लिस्ट आउट करने के लिए, कि मम्मी को सबसे ज्यादा जरूरत किस बात की पड़ती है, या पापा को बहुत जरूरत, या आपको क्या जरूरत पड़ती है. वो चीजें खुद हम बना सकते हैं. हो सकता है कि थोड़ा कॉस्टली पड़ जाए, हो सकता है चाइना मॉडल ले लें तो 500 का बने, हो सकता है 1000 का बन जाए, लेकिन आपको सीखने को बहुत मिलेगा और आपका इंटरेस्ट बहुत है, राइट ना? यस सर. ओके. शिवम नरूला. शिवम
बेटा क्या क्या नहीं सुनाई दिया बताओ। तो शिवम। सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी बीच में, अच्छा अच्छा, हाँ वॉइस एक क्लियर और, नहीं आ रही थी। हाँ तो एक और रिक्वेस्ट है आप लोग से, प्लीज दिस सेमेस्टर नो टिल दिसंबर और जनवरी फरवरी जब तक चले, आपको इंटरनेट कनेक्शन ऐसे ही रहेगा ना, तो हमारे पास तो अच्छा नेटवर्क है, बट आपके साइड नहीं है। तो सब प्लीज पापा को बोल के सबसे पहले आप इंटरनेट कनेक्शन लगवाएं, राइट। किसी को यदि ऐसा प्रॉब्लम है, इंटरनेट नहीं है, ये नहीं है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि यस ब्रॉडबैंड लगवाएं। यस, अच्छा अच्छा है, अच्छा है, प्लीज अनम्यूट। यस सर। हाँ अच्छा, अपने बारे में बताओ। अ, अच्छा है, अच्छा लॉग आउट हो गए तो। ओके, अदिति महाजन। गुड अदिति, आफ्टरनून सर। हाँ हाँ बताओ, क्या नाम है बेटा आपका? शायद मम्मी के मेल से लॉग इन हुए हो। साहस महाजन। ओके, बेटा समझ में आया जो मैं आज बताया आपको कि क्या क्या पर्सपेक्टिव हैं, कैसे कैसे यस सर। सो वेरी गुड। आर्या महाजन। हाँ, अपने बारे में बताओ, कहाँ से स्कूलिंग किया है? सर डीपीएस जम्मू। तो मैंने आज जो प्रोजेक्ट सब दिखाए, जो केस स्टडी दिखाया, अच्छा लगा? यस सर, वेरी इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेटिंग सर। Yes, so you people also can do the same way. So आज का मेरा लास्ट एजेंडा है, so write down, एजेंडा है कि आपको एक एक प्रोजेक्ट का नाम बताना है, और वो प्रोजेक्ट कहीं भी देखना नहीं है। दैट प्रोजेक्ट शुड बी एसोसिएटेड विथ योर फैमिली। जो प्रॉब्लम आप डेली फेस करते हो, डेली फेस करते हो, तो जितने भी 40 स्टूडेंट हैं अभी, उसमें हम डिवाइड कर लेंगे। सेम जैसा प्रोजेक्ट होगा, सेम जैसा प्रॉब्लम होगा, तो हम उसको कंबाइन कर लेंगे और एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ओके, सो प्लीज लिख लीजिए, आज का होमवर्क लिख लीजिए, जैसा आप होमवर्क समझें या मेरा एजेंडा समझें। आप सबको मुझे मेल करना है ऑन द सेम मेल आईडी कि मम्मी मम्मी से पूछना है, या पापा से पूछना है, या अपने आप से पूछना है, या घर में देखना है कि कॉमन प्रॉब्लम सबको क्या है, और जो भी कॉमन प्रॉब्लम होगा उसका हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। आरुषि पंडिता, सही है बेटू? Yes, sir. ओके, फरहत कादरी, फरहत कादरी। गुड आफ्टरनून सर। हाँ फरहत, समझ में आया बेटू आज मैंने जो बताया आपको, कैसे कर, हमें क्या पर्सपेक्टिव रखना है आगे का, है ना? जी यस सर। और आपको मैंने प्रोजेक्ट क्या दिया सर कॉमन प्रॉब्लम होम जो है उसको आपको मेल करनी है, कॉमन प्रॉब्लम वी फेस होम आपके घर में एंड जो प्रॉब्लम है उसको लिस्ट करके मुझे देना है, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, बनाना है हमें, राइट? ओके, म्यूट कर लो। लास्ट इज खुशी शर्मा, खुशी शर्मा। खुशी शर्मा, खुशी शर्मा, अनम्यूट करो बेटा। कौशिक खजूरिया, कौशिक खजूरिया। यस सर, गुड आफ्टरनून। हाँ कौशिक, आपको सबसे पहले मुझे अपना प्रॉब्लम फॉर्मुलेशंस देना है, और उसको हम पूरे इस सेमेस्टर में बनाएंगे, राइट? सेमेस्टर से पहले बना लेंगे। तो ये पहला क्लास में आपको क्लियर हो गया कि आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शंस और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दो बुक प्रेफर करनी है, एक मिलमन एंड हेल्किंस एंड दूसरा वॉयस्टेड। ओके, दोनों में से एक कोई बुक ले लीजिए, वॉयस्टेड ले लीजिए, जो दोनों में काम आएगा। और आपने कहाँ से किया है 12th? सर मैं उधमपुर से हूँ, तो मैंने अपनी 12th महाराजा हरि सिंह डीएवीआई सेकेंडरी स्कूल से की है। मैं गया हूँ वहाँ। ओके, थैंक यू। तो म्यूट कर लो बेटो। तो एनीवन हैव द एनी क्वेश्चंस? ओके, अच्छे शर्मा, कोई बात नहीं बेटा। एनीवन लास्टली प्लीज लेट मी नो। है ना? सो बताइए, किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो। मल्होत्रा जी अनम्यूट कीजिए।
मल्होत्रा, वेनी मल्होत्रा। यस सर। हाँ, क्या नाम है आपका? तारिणी मल्होत्रा। हाँ, बताओ कोई अभी जो मैंने बताया सब समझ में आया? सर। ओके, तो मुझे प्रॉब्लम फॉर्मेशन चाहिए नेक्स्ट क्लास के पहले, है ना? यस सर। जनरल प्रॉब्लम फरहत, जनरल प्रॉब्लम मतलब जो आपको डेली फेस करते हो, राइट? आपको जो प्रॉब्लम हो ना वो मुझे फॉर्मुलेट करके बताना है। ओके, और जब आपका जो फर्स्ट ईयर का बच्चा, सेकेंड ईयर का बच्चा पैटर्न फाइल कर सकता है, इतना अच्छा प्रोजेक्ट बना सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है? ओके, सो आई थिंक नाउ for the today class, during the free time, what we learn about the, yes, अभी एक ही कोर्स करना है आप सबको। वेरी गुड क्वेश्चन अभिषेक रनियाल। आप सबको बहुत अच्छा पूछा उसने कि अभी हमें क्या करना है। ओनली पाइथन एंड सेकेंड वन जो मैं नेक्स्ट क्लास में बताना चाहता था, बट मैं अभी बताता हूं आपको दो साइट पे रेफर करना है। मैं साइट दिखा देता हूं आपको। एक का नाम है बेटा, इस एक ही साइट है अभी रेफर करना है, लिख लो arduino.cc, जो मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा, प्रोजेक्ट बताऊंगा। एक साइट रेफर करना है arduino.cc प्लीज। तो बहुत अच्छा लगा मुझे क्वेश्चंस जिसने भी बोला, और शर्मा कॉल ने रिप्लाई भी बहुत अच्छा किया। पाइथन ब्रदर, यस, पाइथन इज द कोर नाउ फॉर ऑल, हमारे लिए भी और जो भी ब्रांचेज हैं। तो पाइथन बहुत अच्छा से कर लीजिए, और उसके लिए थोड़ा सी भी देखना पड़ेगा। और सेकेंड, एज फार एज द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कंसर्न, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक्स एंड कम्युनिकेशन बाद में आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। सो आपको कभी भी कोई डाउट हो, प्लीज लेट मी नो। तो यस, फ्री टाइम में अभी सिर्फ और सिर्फ करना है पाइथन एंड एक प्रोजेक्ट, जिससे कि आपका हार्डवेयर में इंटरेस्ट आ जाए। पाइथन से ही स्टार्ट करो बेटा, अभी पाइथन से ही स्टार्ट करो। सी को पढ़ाएंगे जब इस क्लास में तो करना। सी भी यदि आपने सी किया होगा, मुझे लगता है कि हमारे टाइम में तो नहीं हुआ करता था, बट नाउ दिस डेज 12th में आपका सी होता है, जैसा मुझे मालूम है। यस, नहीं सी प्लस प्लस नहीं करना है बेटा अभी, नहीं सी प्लस प्लस नहीं करना है अभी प्लीज सी कीजिए या पाइथन कीजिए, दोनों में से एक कीजिए प्लीज। यस, पाइथन में क्यों? वेरी गुड, अरे ये नहीं मालूम था मुझे। अनिरुद्ध, यू हैव डन पाइथन 12th, सो वेरी गुड। सो पाइथन में हम प्रोजेक्ट बनाएंगे फिर, राइट? यदि आपने पाइथन किया हुआ है, सो ऑन द बेसिस ऑफ पाइथन वी कैन डू द प्रोजेक्ट, राइट? और सिंपल प्रोजेक्ट, और वो सारे प्रोजेक्ट कहाँ मिलेंगे अभी मैंने बता दिया आपको, arduino.cc, वहां पे जाएंगे आपको। और देखो मटेरियल्स हम मेन क्या है ना, जो मटेरियल्स की बात है ना, वो अवेलेबल, इतना अवेलेबल है यूट्यूब पे कि आप सोच भी नहीं सकते। बट यस, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अलाइनमेंट, दोनों का अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिंक, ओके, एक जस्ट मिनट, लिंक इज this is the link of arduino.cc, ओके। और यहाँ से आप प्रोजेक्ट कंपोनेंट देखिए, पूरा बताऊंगा मैं, नो इशू। अभी आज फर्स्ट दिन है, ज्यादा हम हैक्टिक नहीं करना चाहते। आपको इंटरेस्ट अभी होना चाहिए, 2-3 बार थोड़ा इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, बाकी सब कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेन है कि आपको हमारे ब्रांच में इंटरेस्ट आनी चाहिए, और आपको लगना चाहिए कि यस, कि मैं भी कुछ प्रोजेक्ट कुछ प्रोडक्ट दे सकता हूँ कंट्री को। ओके, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। Welcome in electronics engineering branch at SMU, and hopefully after BTech you have a really great future. Okay, all the best. Thank you all of you.